Right. So in this question number 3, you basically list down what is the ambitious business goal that you are working on. Right? तो ओवरऑल इसमें आप बेसिकली ये डिस्कस करते हो कि आपके बिजनेस की तरह आप ओवरऑल क्या गोल अचीव करना चाहते हो. द एक्सपांशन, इतनी ब्रांचेस बढ़ानी है या तो इतने डिस्ट्रीब्यूटर करने हैं या तो ओवरऑल अगले 3 साल में मुझे इस लेवल पे लेके जाना है. राइट. दैट कैन बी योर एम्बिशियस बिजनेस गोल. दैट्स अ वेरी मैक्रो थिंग. जब आप थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर करोगे, इट्स अ वेरी मैक्रो थिंग. आउट ऑफ दैट मैक्रो थिंग नाउ वी कम डाउन टू द माइक्रो थिंग कि उसमें आपका फाइनेंशियल एस्पिरेशन क्या है. तो बिजनेस तो बढ़ाओगे, लेकिन उसके साथ साथ व्हाट इज द फाइनेंशियल लेवल दैट यू वांट टू अचीव, maybe next 2 years, 5 years, or maybe next 1 year. If you want to like work on a first milestone, कि पहले अगले साल में इतना तो करते हैं, फिर अगर वो होगा I will make 3 years also and 1 year also. Yes, yes. I will create one for 3 year and then what we are going to achieve in 1 year. In the next 1 year, right? तो वहां पे आप करंट एस्पिरेशन दोनों चीज डालते हो कि अभी मैं इस लेवल पे हूँ, आई एम एट दिस लेवल राइट नाउ एंड आई वांट टू रीच एट दिस पर्टिकुलर लेवल. राइट. अच्छा, then you basically give a name to it because Amit sir always says that that's where you like kind of correlate with it कि we are working for this thing. Right. You put a deadline to it. जैसे आपने बोला एक साल का, एक 3 साल का, तो you put a deadline to each of the same. Now we again go into the micro of the same where we also plan कि not only कि इतना revenue करना है, but we also plan कि इतना profitability भी का maintain करना है. So it should not only कि we are increasing the revenue. We should also focus on कि at the end of the day this much of profitability should be maintained. Right. And out of that, like what kind of personal income you want to take home. So एक होता है कि आपने 50 करोड़ का प्रॉफिट किया तो you want to like reinvest 40 crore in a business and remaining 10 crore you want to take it as a your own income. So out of the net profit, what is the like kind of thing that you want to reinvest and what is the kind of thing that you are planning to take home? That also we kind of put in an aspiration. Right now I'm reinvesting nothing. So because everything house and everything again is your there, decision. so. You can again put it that, but if you want to like plan कि मैं इतना तो like I want to make it for myself, right? So that's where you put it कि what is the personal income you want to make out of it. No, but I'm having personal income continuously. So then should I also create some that kind of things? Because I have good personal income, like yeah. So that's where you decide कि चलो मेरा already दूसरी जगह पे से personal income है, तो I don't want to take anything over here. I want to reinvest everything. Or you may decide कि भाई इसमें से even I try to leverage that one because one business only I leverage. That's on. Yes. All four what they are paying, I never go through those things. What I'm getting out of that one, that's my income. But one business I leverage. True. तो that's where I'm saying कि you decide कि ये वाले बिजनेस में से या तो ये जो हम अभी बेसिकली कर रहे, do you want to take something or you want to put it again back to here, right? So that you will also be clear कि अगले साल इतना चीज होगा तो उसके बेस पे हम ये कर पाएंगे, because if we are predicting this much of profit and we are planning to reinvest everything, that's where we will be able to do more business or more products or many things that we want to achieve, right? Now actually the basic things come into जहाँ पे हम even micro planning कर रहे हैं. तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि एट दिस करंट लेवल ऑफ इनकम आपके इतने कस्टमर या तो डिपार्टमेंट या तो जोनर से, राइट? तो कल अगर आपको से फॉर एग्जांपल 50 करोड़ से 100 करोड़ पे जाना है या तो 500 से 1000 करोड़ पे जाना है, राइट? तो उसके लिए कितने ब्रांच या तो कितने डिस्ट्रीब्यूटर या तो क्या करना पड़ेगा, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ मेजर कस्टमर यू नीड टू हैव, एट द सेम टाइम कौन सी टिकट साइज के कस्टमर्स होने चाहिए. तो अगेन आप इसको हाई वैल्यू, लो वैल्यू, अलग अलग टिकट साइज में कर सकते हो, जिससे आपके सेल्स और मार्केटिंग वाले को एक क्लियर नंबर मिलेगा कि अगर इस लेवल पे जाना है तो इतने डिस्ट्रीब्यूटर या तो कस्टमर तो हमें बनाए नहीं पड़ेंगे, सो दैट विल बी एबल टू अचीव इट. सो दैट्स वेयर वी आर काइंड ऑफ माइक्रो प्लानिंग कि इस गोल को अचीव करने के लिए हाउ मेनी नंबर ऑफ कस्टमर और हाउ मेनी kind of ticket size of customer or how many number of units, maybe in your case it can be unit based also, right? कि इतना unit तो sell units and customer, unit में customers वो बहुत important. Already we are doing that one because we like because मैंने कभी उसको सोचा नहीं लेकिन आज तक, लेकिन हम यही करते हैं कि हम कस्टमर बेस ही बढ़ाते हैं. like नहीं भाई राइट नाउ वी आर, बिकॉज मैं कभी भी एक कस्टमर को फोकस ही नहीं करना चाहता. लाइक टुडे वी आर हैविंग मोर देन 7500 customers. So मेरा फोकस हमेशा यही होता है शुरू से ही ना. When I started the business only was that no, I will not give to anybody in
bulk or wholesale or like that one. I will go to the retailers only. एक तो क्या हुआ कि उससे मुझे हमेशा मतलब जैसे एक मेरी स्टेबिलिटी रही, अगर मान लीजिए उसमें से 10 कस्टमर कहीं चले भी गए तो भी अपने को फर्क तो नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और मुझे ऐड करने के लिए मेरे को विंग्स फैलाने के लिए बहुत जगह मिल गई। लाइक मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ, छोटे छोटे कस्टमर तो बहुत है ना, मतलब रिटेलर्स अगर बहुत हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता उनको माल देता तो वो लिमिटेड नंबर थे, मान लीजिए 20-25 में, वही मेरी सारी कैपिटल खा जाते, लेकिन वही पैसा मैंने सब में उनमें फैला दिया। अच्छा, वहां पर मेरा रिस्क भी वो हुआ, तो दैट्स द वे आई हैव गॉन। यस, बट अभी आपको वो चीज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट इज नाउ यू हैव टू डू दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर एस्पिरेशन। या अभी आपको एक स्पेसिफिक करना है कि पहले आप व्हाट यू आर सेइंग इज कि वी वांटेड टू, वो एक इंस्टिंक्ट था, मतलब इंस्टिंक्ट था। अभी अपने को प्लान करके करना है कि अगर 1000 करोड़ पे जाना है तो इतना तो लाइक टारगेट की तरह करना ही है, राइट। देन एज यू ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इट, बट यू आल्सो थिंक अबाउट कि अभी अगर मुझे इस लेवल पे जाना है तो सिर्फ मे बी ओनली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर मे नॉट बी टेक अस टू द एस्पिरेशन, राइट। वी मे हैव टू गो टू द न्यू मार्केट like you are now planning. We may have to introduce a new product, or we may have to change in our cost or change in our quality. Because see, Amit sir again says, if you kept on doing the things, right, what you are already doing, then you will keep on getting the same result. अभी 500 से 1000 पे जाना है तो कुछ तो बदलना पड़ेगा ना, या तो नए मार्केट में जाना पड़ेगा, या तो नई प्रोडक्ट लेके आने पड़ेगी, या तो उसके कॉस्ट में चेंज करना पड़ेगा, या तो, क्योंकि अगर वो सिंपल होता तो अब तक आपने कर दिया होता। अभी जो बहुत बड़ा चैलेंज जो आ रहा है, हमारी मार्केट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जा रही है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, लोगों को फंडिंग आ रही है, मतलब लाइक 4-5 का you might have gone through Reliance or मतलब like these guys are मतलब doing all those things. So we are facing, because they are burning money now, they start burning money. Like they are giving more discounts and all that, though they are not getting the customers right now or quantum, but slowly, gradually, our retailers are also saying no, they are giving, though we are very fixed since beginning that no, we will not give any discount, because earlier also people used to give more discounts, but हमने नहीं दिया कभी भी। लेकिन अभी क्या हो गया, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं, एक तो इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, मतलब इन द सेंस की मतलब उनके सिस्टम्स और उनके सेंट्रलाइज सिस्टम्स हैं सारे ना, लाइक उनका ऑल इंडिया में एक सिस्टम बैठा हुआ है, वहाँ 100 एनालिटिक्स बैठे हुए हैं, वो उनको हर पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन, और उनके पास डेटाबेस भी है पहले से ही ना, उन्होंने कहीं ना कहीं कोई सॉफ्टवेयर कंपनी खरीद ली है, कोई फार्मा की या कोई वो कर लिया है, तो दैट्स अ बिग चैलेंज वी आर गोइंग टू गेट इन नेक्स्ट वीक, एंड दैट्स द बिग व्हाई वी आर trying to consolidate our business. Apollo is also trying to consolidate our business, because Apollo never give, like we are a part of Apollo, but Apollo never asks more than 4% discount, and they never say that you should give discount to anybody. They have never allowed us to give a discount, more discount, because they also always want to work on profits. They say if we don't have profits, then there is no fun. We don't want to burn any money. Yes. But now these players coming, these players is creating a big problem for us. How we tackle that one? That's the तो उसमें 2-3 चीजें हैं, अपने बिजनेस मॉडलिंग में उसके ऊपर बैठेंगे। एक तो ये कि हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी इन आवर केस आल्सो, लाइक वी कैन स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी सो दैट वी कैन आल्सो हैव काइंड ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर्स, जहां पे भले अपने कैश बर्न नहीं करे, बट अपने भी एक तरीके से रेगुलराइज करे, जहां पे कोई भी बंदा कहीं से भी ले सकता है या तो कुछ चीजें कर सकता है। So that's about a major planning where we kind of try to incorporate technology in our business also. एक्चुअली में उनका सबसे बड़ी बात क्या हुई, वो अभी नए आ रहे हैं, उन्होंने अपना सेंट्रलाइज सिस्टम बना लिया है सारा ना, लाइक ऑल इंडिया का उनका एक सेंट्रलाइज सिस्टम बन गया है। और वहां पर अब मेरे पास मान लीजिए हम जैसे अभी हम भी प्लान, मैंने भी वही जैसे हमने प्लान कर रहे हैं कि हम आल्सो भाई सभी 19 का एक करके एक ऑफिस बना करके और उसको, लेकिन हमें अब इंटीग्रेट करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम डिफरेंट उस पर काम कर रहे हैं। डिफरेंट हमारी प्रोसेसेस डिफरेंट है, हर किसी की, हम में से जो सभी अपोलो को सप्लाई कर रहे हैं, हमने अपनी प्रोसेसेस बना रखी हैं, लेकिन अब वो सबको एक प्रोसेस बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब दैट्स टफ जॉब फॉर अस, मतलब very big challenge, right? बिग चैलेंज फॉर अस, मतलब which we are facing now, मतलब but what I'm still suggesting is कि you should start working on it, because जो idea आप लोग अभी आए हैं, और वो अगर see, I understand it is very difficult, but imagine if it can be really done in a proper way,
then there will be like kind of great thing that you are achieving or able to achieve. No, because we are a 12,000 crore group, and we have a profit of around 700 crore. Yes. So we are on the big, and they people have only 1,000 crore sales and 900 crore losses already they have made. Yes. So that's the way, we are functioning, and there. So our value will be, because once we go and then we go to public, then our value will be big one. We know that. So that's why we have planned this one. Yes. तो आप क्या कीजिए कि ये चीजें भी है ना, एक बार ऐसा आपको लग रहा है तो you can like kind of put this as a challenge also, so that I will take these things to my team also, and we will have a discussion on that also. I will elaborate on this one, because these are last month changing, all we are making. So I will incorporate all those changes and how we are thinking and what should we do and all that. So that, because all 19 group of us will also be so you are going to lead them? Yeah, I'm going to lead. Wow. Very good. Wonderful. So obviously, so definitely you put all those things over here, or maybe in our earlier discovery form also, the new development करके आप एक चीज वहां पे डाल देना. तो वो सारी चीजें भी मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा, एंड आई विल कम आउट नॉट ओनली माय सजेशन बट द होल टीम सजेशन कि इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और किस तरीके से चीजों को आगे लेके जा सकते हैं. राइट. Then in this particular form what you do is you also, जैसे अभी हमारी आज बात चल रही थी, राइट, कि कौन से डिपार्टमेंट में आप इन्वॉल्व हो जाते हो. Major is my accounts department. I can't. So that's why you put like कि यहाँ पे आप बोलो कि जैसे that's good. Now I'm more clear. Right? You will say कि यहाँ पे मैं इन्वॉल्व हूँ. This is owner dependent. अगर आप 8 में लिखोगे तो you will also understand कि सब जगह पे आप घुसे हुए हो. You are like everywhere. Because right? I want everything in accounting clear, and I want to know everything in accounts. Right. That's the problem with, because the guys who have worked in accounts. Yes. I was a banker, so as a banker in finance and accounting, I always get involved into. Then you see कि इसमें से कितने डिपार्टमेंट में consistently actions आ रहे हैं. Okay. तो आप बोलो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सपोज से फॉर एग्जांपल यू से मार्केट डिपार्टमेंट इज नॉट लाइक काइंड ऑफ माय डिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंटली डूइंग द थिंग्स, राइट. द क्वेश्चन इज आर दे टेकिंग कंसिस्टेंट एक्शंस, डे बाय डे उनका एक्शंस भी हो रहा है. तो आप बोलो कि हाँ एक्शंस तो वो लोग ले रहे हैं, दौड़ तो रहे हैं वो लोग, राइट. बट देन द क्वेश्चन इज आर यू गेटिंग द रिजल्ट दैट यू वांट आउट ऑफ देम. अभी अगर आप यहाँ पे यस बोल रहे हो, इट मींस के ज्यादा कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं है, वो लाइक डिसेंट्रलाइज भी है, एक्शंस भी आ रहे हैं और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं. बट इफ यू से कि नहीं, रिजल्ट्स मेरे को जो चाहिए वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे. Good. This one is really nice one. Right. So on the basis of that, we will understand कि कहाँ पे काम करना है. Right. That is one thing. Now again, what happens based on this criteria that we decided कि कितने कस्टमर चाहिए, उनका क्या टिकट साइज चाहिए, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए, उसके बेस पे हम 3 चीजें डिसाइड करते हैं फॉर ईच ऑफ द डिपार्टमेंट. So now we will go micro सब डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट वाइज. तो सबसे पहले हम बोलेंगे मार्केटिंग. तो आप बोलोगे मेरे मार्केटिंग का गोल क्या है. तो से फॉर एग्जांपल आपने बोला था कि मेरे को कस्टमर बेस से फॉर एग्जांपल 1500 बढ़ाना है. आई वांटेड टू हैव 1500 कस्टमर्स. तो यू आस्क क्वेश्चन कि 1500 कस्टमर बढ़ाने के लिए कितनी लीड चाहिए, कितने लोगों से कनेक्ट करेंगे, या तो कितने लोगों को जाके मिलेंगे तो 1500 कन्वर्ट होगा. तो यू काइंड ऑफ रिवर्स कैलकुलेटेड, राइट. तो आप बोलते हो कि 1500 कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 3000 लोगों का डेटाबेस कनेक्शन कॉल या तो कुछ होना चाहिए, तब जाके हमारे 1500 कन्वर्ट होंगे या तो कस्टमर बनेंगे. सो नाउ यू हैव अ गोल कि मार्केटिंग के तरह पूरे साल में 3000 नए कस्टमर का लीड या तो डेटा हमें कलेक्ट करना है. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये 3000 कैसे करोगे, हाउ विल यू डू इट. आप फिजिकली अपने बंदों को दौड़ा के करोगे कि क्या हम कल डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या हम बैनर्स और होर्डिंग्स या तो न्यूज़पेपर कर सकते हैं. तो स्ट्रेटेजी यू डिसाइड व्हाट ऑल यू कैन डू विद रिस्पेक्ट टू अचीविंग दैट 3000 नंबर, राइट. एंड इन द सिस्टम यू काइंड ऑफ मैप इट कि चलो आपने बोला है 3000 करेंगे, बट देन हाउ विल यू नो कि 3000 के रास्ते पे है कि नहीं, लाइक आर यू इन द राइट डायरेक्शन, और हाउ विल यू नो दैट. That's where you put a system to measure it that we are actually moving toward the right direction or not. तो आप मार्केटिंग का गोल बनाओगे कि मार्केटिंग के तरह इस साल में हमारे एस्पिरेशन के लेवल के तरह what we want to achieve, how we are going to achieve that, right? And whatever we want to achieve,
the way in which we will map it or like measure it so that we know कि we are on a right track, right? So this will again Okay, give you much clarity. good. I will make it on my own micro level also to my marketing team. So they will give me and I will incorporate into that Yes, one. perfectly. Same way आप सेल्स के लिए करते हो तो मार्केटिंग का तो ये हो गया कि आपको like kind of इतने लोगों से कनेक्ट करना है, बट देन सेल्स भी करना है. तो क्लोजिंग के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे? जैसे ही आपने बोला कि डिस्काउंट या तो आप बोल रहे हो पोर्टल, तो व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रेटेजी बाय व्हिच यू विल मेक श्योर कि आपका उतना क्लोजिंग भी हो रहा है, यू आर एबल टू सेल आल्सो, राइट? और वो जो सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगेन उसको मैप कैसे करोगे? हाउ विल यू मैप दैट, राइट? सेम वे ऑपरेशंस. आपका ऑपरेशंस का गोल क्या है? जैसे आपने बोला था कि लाइक टाइमली तो आप कर ही रहे हो, राइट? बट स्टिल यू वांट टू डू लाइक सेकंड शिफ्ट में या तो 12 बजे तक या जो भी है. सो व्हाट इज दैट वन गोल यू वांट टू अचीव इन योर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट? उस गोल को अचीव करने की क्या क्या स्ट्रेटेजी हम यूज कर सकते हैं, एंड व्हाट सिस्टम वी कैन पुट, लाइक एसओपी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, राइट? That SOP part also can be the system by which you will try to measure and map the same. Then also, if you feel there are more departments in your organization, आपको लगता है जैसे procurement या तो रिवर्स लॉजिस्टिक्स है जिसमें एक्सपायरी भी चीजें जाती हैं, तो आप हर एक डिपार्टमेंट का गोल बनाओगे, स्ट्रेटेजी लिखोगे और उसकी सिस्टम लिखोगे. फाइन. जो आप लिख के आओगे that would be version 1. On the basis of that we will have a brainstorming and then we will come to a conclusion and put a actionable कि इसके बेस पे चलो ये 1 2 3 4 5 चीजें शुरू करते हैं, right? Now you also think about the capacity and competence of your team. See, because we want to go from maybe 500 to 1000 crore, you also understand कि जो existing team है, या तो आप उसकी capability बढ़ाओ कि वो डबल काम कर सके, या तो आप टीम की कैपेसिटी बढ़ाओ कि ज्यादा लोग हैं तो वो डबल काम कर सके. It has to be either of the option. तो अगर आप कंपेटेंस की बात करो तो आप बोल रहे हो कि मेरे प्रेजेंट जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उसमें ओवरऑल ये सारी स्किल्स उनके पास है, बट आई फील कि उनके पास ये स्किल भी होनी चाहिए. जो मार्केटिंग का बंदा है उसको डिजिटल आना चाहिए, जो भी फॉर एग्जांपल एचआर का बंदा है उसको भी ये 3-4 चीजें अगर आ जाती है तो मेरा काम बहुत अच्छा होने लगेगा. और मे बी न्यू पर्सन हमको जो लेना है उसके पास ये स्किल तो होनी चाहिए. तो यहाँ पे आप कंपेटेंस मैप करते हो कि दिस आर द कंपेटेंस ऑफ माय पीपल, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कंपेटेंस. लाइक एक चीज अभी आप बोल सकते हो कि दे कैन इंडिपेंडेंटली हैंडल, दे शुड नॉट कम टू मी फॉर स्मॉल थिंग्स. दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम माय पीपल, राइट? एंड देन हियर यू डिसाइड द नंबर, कैपेसिटी. कि मार्केटिंग में अभी मेरे 2 लोग हैं, बट अगर मुझे 1000 के लेवल पे जाना है तो और 2 लोग लाने पड़ेंगे, सेल्स में 1 बंदा लाना पड़ेगा, ऑपरेशंस में 3 बंदे लाने पड़ेंगे. तो व्हाट एवर नंबर यू थिंक, अगेन बेस्ड ऑन योर ओन एस्पिरेशन. तो आपको लगता है अगले 1 साल में इतना बढ़ाना है, तो अभी से आप उसका माइक्रो प्लानिंग कर रहे हो कि वो 1000 पे जाने के लिए कितने कस्टमर चाहिए, 1000 पे जाने के लिए क्या मार्केटिंग करेंगे, क्या सेल करेंगे, कैसे ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे, राइट? कितने लोग लेके आएंगे, कैसी कैपेसिटी वाले लोग लेके आएंगे. दिस ऑल माइक्रो थिंग्स टेकन टुगेदर विल हेल्प यू अचीव योर मैक्रो गोल. सो वी वांट टू मेक दैट माइक्रो प्लानिंग आल्सो. And finally, we also talk about your culture, because from here you will start building your culture, right? So here you talk about the UWIN, IWIN. Okay, I want punctuality, discipline, ethics, whatever you decide, right? अबे आप In that cultural में we are really fine. मतलब Yes. we are really wonderful. मतलब our organization is above par. Whether it's discipline is the punctuality, discipline, ethics, मतलब work environment and मतलब means anything, मतलब we are above par. So my question is, do we have the documented? No, we have not documented. I Like harassment and all that we have documented. Yes. But like this also is a part of document, so that tomorrow someone is coming, he also knows in very like in letter and spirit that this is the organization I am basically into. Okay, so how should I document it? That's because only harassment policy we have documented. मैं आपको कुछ कल्चर डॉक्यूमेंट ऐसा है तो अगेन मेल करो मेरे को, आप लिख लीजिए, ये मेरे को कल एक मेल कर दीजिएगा तो मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर लूंगा अपने उसमें. मैं तो ये भी लिख लेता हूँ. This 99% of people are punctual, disciplined, ethical.
because ethical is must our follow practice, them. but I can't expect from them to be ethical, but our practices are very, very ethical. So that's we have inculcated that one in our organization. So what I'm saying is, when you say we have inculcated that, it means somewhere or other way you have communicated them to people, right? Yeah. That's. I just want those things to be in writing. Okay, fine. Right? Okay, our organization believes in that. Say, for example, you put one major heading that's an ethical requirement, right? And then you write down like from your own side, okay, our organization basically expect highest quality of ethics, right? We do not believe in this bribery and this. So you list down 10 different points, and then you like kind of make a document. Okay, when it comes to ethics, this is what we adhere, this is what we follow. Okay, fine. Right? But you send me something. Yeah, I'll definitely send. I'm just trying to give you framework also. Review framework. I'll definitely. Then I will be able to get it created better way. Then also, so this was again, this is what you expect from your employee, right? It's your win. I expect punctuality, I expect discipline, I expect ethics, right? So it's about me. Then you also talk about you as an employee. कि आप ये सब करोगे तो आपका अप्राइजल होगा, आपका ग्रोथ होगा, आपका प्रमोशन होगा, because it has to be two ways. I believe कि आप वो कर ही रहे हैं तभी ये सारी चीजें हो रही है, right? But again it comes down to the documenting कि जो ये चीजें follow करेगा, like again this can be part of your KPI also. कि those employee, one of the key result कि those employee who are punctual, disciplined, ethical, or who follow this, they will be like kind of in the performance comes, they will be kind of look into it, or they will get the raise, or they will get the promotion based on their like cultural alignment also, right? And finally, two things, you decide, you tell me what is the learning goals, because see, Amit sir always says your business is reflection of you. धंधा बढ़ाना है तो खुद को भी बढ़ना पड़ेगा. तो आप मुझे स्पेसिफिकली दोगे कि आपको बिजनेस फंक्शन लेवल पे क्या क्या लर्निंग आपको लगता है कि मुझे लेनी चाहिए अगले 1 साल में, 2 साल में, नॉट इमीडिएटली ऑब्वियसली बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आपके डोमेन रिलेटेड क्या लर्निंग आप लेना चाहते हो, या तो कुछ अदर लर्निंग है जो आपको लगता है कि ये मुझे हेल्प करेगी. सो यू पुट डाउन अ लिस्ट कि मैं इतनी चीजें लर्निंग करना चाहता हूँ अगले 1 साल में, अगले 2 साल में. एंड फाइनली वी वांट टू अंडरस्टैंड योर पर्सनल गोल्स, राइट? फैमिली के गोल्स क्या हैं, आप अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो, फ्रेंडशिप गोल्स, सेल्फ गोल्स. अमित सर अगेन मेनी टाइम सेज कि इन द प्रोसेस पीपल फॉरगेट अबाउट देमसेल्व्स. धंधे में इतना उलझ जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं. तो यू पुट डाउन ऑन अ पेपर कि लाइक आप बोल रहे थे कि हेल्थ लाइक ओके मैं ये करना चाहता हूं, तो बाकी सारी चीजें सही है बट आई विल डू दिस व्हाटएवर मे बी द केस. एंड फाइनली द चैरिटी गोल, बिकॉज़ as Amit sir says, when you start growing, you should like start contributing also, which you must be doing. But now we already started 10 years back. We have started our own TG and all that, and we are doing like every year we are giving 30 persons B Pharma we are doing. Wonderful. And their salaries, they are our employees also. Like we give them training and all that, and we pay them, and we pay their fees also. We take from the those person who can't